about your work in a situation where it is not acceptable. Clear? So next है, it is a piece of cake. It is a piece of cake. कोई चीज जब बहुत आसान होती, बहुत आसान काम, it is a piece of cake. Very simple. कोई भी काम जो बहुत आसान होता है उसके लिए हम कहते हैं it is a piece of cake. और उसी का दूसरा फॉर्म है it is not rocket science. It is not रॉकेट बनाने का जो साइंस होता होगा वो तो बहुत कठिन होता होगा ना, अपन समझते हैं उस चीज को. It may or may not be a learnable skill. कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जो कि लर्नेबल होती हैं, हम सब सीख सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कितना ही लर्न कर लो वहाँ बहुत बेजा पड़क है, हमारे बस का नहीं है. That kind of a thing is rocket science. Very very difficult. It involves precision. बहुत accurately ये करो वो करो, बहुत आपको करना पड़ेगा. तो that is rocket science. बाकी चीजें तो आप सीखो, प्रैक्टिस करो, and you are good to go. You are good to go. What does it mean to be good to go? You are ready. I am good to go. मतलब मैं तैयार हूँ. I am good to go. अब तुम लोगों ने बीएड कर लिया, बीए कर लिया, बीएड कर लिया, टीचर बनना है, यू आर गुड टू गो. क्योंकि आपने बीएड कर लिया, यू आर गुड टू गो. कल नौकरी मिल जाए तो आप आराम से काम कर सकते हो. यू आर गुड टू गो. चलो, तो नॉट रॉकेट साइंस का मतलब इट इज नॉट रॉकेट साइंस, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है ये काम. पीस ऑफ केक तो बहुत आसान काम है, और नॉट अ रॉकेट साइंस वो भी नहीं है कि बहुत ही आसान है. हाँ, डिफिकल्टी तो होगी पर इम्पॉसिबल नहीं है इसको सीखना. दैट इज कॉल्ड नॉट रॉकेट साइंस. और तुम्हारी मैम तो एक ही एग्जांपल देंगी कि इंग्लिश इज नॉट, लर्निंग इंग्लिश इज नॉट अ रॉकेट साइंस. इट्स एब्सोल्युटली अ लर्नेबल स्किल. चलो, टू लेट द कैट out of the, Harshita, what's the problem? I'm telling her examples which can be said in these two sentences. Don't, please allow her to register what's happening here. Is she asking you? No, I'm asking her कि ऐसा हो सकता है यहाँ पे. So you ask me na, that the class will benefit. You ask me, because she won't be able to pay attention otherwise. Ask me by all means. Come on. I asked her कि like riding a bicycle is a piece of cake. It's an easy thing to do. Okay. And driving a car is not rocket science. Like difficulty you can do it. Yeah, but actually there is no real difference between learning a bicycle, learning to ride a bicycle and driving a car, for the simple reason, suppose a child were to learn to ride a bicycle. It's not rocket science even for the child. You can interchange it and use it. Something which is very simple is a piece of cake. And everything is rocket science if we are not interested. Everything is a rocket science if you are not interested. If you just won't do it, everything is a rocket science. Yes, absolutely, absolutely, है ना? तो हम इसको बहुत ऑर्डिनरी से, बहुत ऐसे काम होते हैं ना, इट्स अ पीस ऑफ केक. तो इट्स अ पीस ऑफ केक, बहुत ही सिंपल काम जिसमें ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं. आप इतने आदी हो चुके हो उस चीज को करने की कि इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर यू नाउ, है ना? What is the sentence? What did he say? Everything is a rocket science if you are not interested. हाँ, everything. You replace interested with something else. See, everything is a rocket science if you don't, get into it. You have to learn that. If you don't want to learn, everything is a rocket science. चलो, idioms actually इतने सारे हैं. See, to get your feet wet, ये जो कह रहा है ना उसी का I'm giving you something expanded. To get your toes into the water. क्या मतलब हुआ? तुम पानी के किनारे खड़े होकर ठंडा है करते रहो. That is one situation. You don't want to get into it.
Okay, but if you really want to learn swimming, you'll have to get your feet into the water. पहले इतना तो करो, पैर तो अंदर डालो, नहीं वो भी नहीं डालना, खड़े होके वहां कहते रहना है कि नहीं नहीं जैसे मेरे को नहीं आएगा. You get it? Then it's a rocket science for you. Then learning to swim is absolutely rocket science. Chalo, very good. So now to let the cat out of the bag. To let the cat out of the bag. और इसका मतलब है a well kept secret जो होता है, किसी चीज को राज रखना है और आप उस वो चीज जो है पोल खोल देते हो. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आपकी बर्थडे है और आपके मम्मी पापा ने वो चीज खरीदी है आपके लिए जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे पाना, और आपके छोटे भाई को उस बारे में पता है, मम्मी पापा ने तो सरप्राइज रखा है, वो पहले ही आपको बता देता है दीदी मम्मी पापा ने ये लिया आपके लिए, है ना. तो ही हैज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. उसने बिल्ली को बोरी में से निकाल दिया. वो बिल्ली को बंद रहना चाहिए था, है ना, जब तक कि बर्थडे पार्टी नहीं, मतलब बर्थडे हो जाती, तुम्हें गिफ्ट मिल जाता, एक सरप्राइज एलिमेंट होता, वो खत्म हो गया. टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, राज खोल देना. टू गिव अवे या टू गिव आउट अ सीक्रेट. पुल समवन्स लेग, इसमें टाइम मत खराब करो. टांग खींचना. टू टीज समबडी, छेड़ना, चिढ़ाना, एक पॉजिटिव सेंस में, जोकिंगली. टू टीज और से समथिंग जोकिंगली. सामने वाला थोड़ा डरता है, अच्छा ऐसा है क्या, या पुलिंग हिज या हर लेग. आपको पता है सच है ही नहीं. यस, Teasing is somewhat different to bullying or bullying. when you are actually when you are pulling someone's leg, you are not bullying the person. You are not bullying. Bullying is a different thing. Bullying में तो हम एक गुंडागर्दी वाली बात आ जाती है ना, हावी हो रहे हैं हम किसी पे, हम वो नहीं कर रहे. पुल समवन्स लेग का मतलब जोकिंगली हम कुछ कह रहे हैं, नहीं ऐसा होने वाला है, अनाउंस हो गया ऐसा होने वाला है, और अपन मान रहे हैं अच्छा ऐसा है क्या, अपन डर रहे हैं, बट एक्चुअली वो सच है ही नहीं, वो तो आपको चिढ़ाया जा रहा है, टीज किया जा रहा है ना, इसीलिए जोकिंगली. टू कट कॉर्नर्स. व्हाट डज इट मीन टू कट कॉर्नर्स? किसी काम को अगर आपको परफेक्शन तक करना है तो आपको हर छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा. छोटी छोटी चीजों को आप ढंग से करोगे तो वो पूरी चीज बहुत साफ और बढ़िया तरीके से काम होगा. पर आप या तो समय के अभाव में या पैसा बचाने के पर्पस से थोड़ा इधर बचा लेते हो, थोड़ा उधर बचा लेते हो, थोड़ा वहां बचा लेते हो. यू आर कटिंग कॉर्नर्स, यू आर ट्राइंग टू सेव. रिजल्ट क्या होगा? यू आर ट्राइंग टू सेव आइदर टाइम और मनी. रिजल्ट क्या होगा? वो काम बड़ा आपका बेकार सा निकलेगा, कॉम्प्रोमाइज लेवल का काम निकलेगा. इसको हम कहते हैं शॉडी वर्क. शॉडी और शैबी दो शब्द हैं. शैबी का मतलब अपीयरेंस से रिलेटेड है. घर का लुक शैबी हो सकता है, प्लास्टर उतर रहा है, पेंट उतर रहा है, शैबी. व्यक्ति का लुक शैबी हो सकता है ना, जैसे घर पे बैठा रहता है वैसे उठ के बाहर आ गया, ही इज ड्रेस्ड शैबीली. शॉडी का मतलब कोई काम अप टू द मार्क ना हो, वो शॉडी है. फिर नेक्स्ट है आपका टू अपसेट द एप्पल कार्ट. किसी के बने बनाए योजना को विफल कर देना, टू अपसेट द एप्पल कार्ट है. किसी के बने बनाए योजना को आपने विफल कर दिया, आपने पासे पलट कर रख दिए. ये है टू अपसेट द एप्पल कार्ट. एंड इसका इंग्लिश मीनिंग है टू अपसेट समबडीज वेल मेड प्लान. और इसी का दूसरा फॉर्म है टू टर्न द टेबल्स ऑन समबडी. टू टर्न द टेबल्स, वही पासे पलटना, टू टर्न द टेबल्स. 60. टू बेरी द हैचेट. टू बेरी द हैचेट, दुश्मनी खत्म कर देना और दोस्ती कर लेना. जो हैचेट है दुश्मनी का प्रतीक, वो जो औजार है उसको आपने दफना दिया, इज इक्वल टू दुश्मनी को दफना दिया.
अब आप दोस्ताना संबंध रखोगे। टू स्टॉप quarreling and become friends. To cut the Gordian knot. To cut the Gordian knot. मतलब एक बहुत बड़ा उलझन है और आपने उसके लिए एक बहुत शानदार सॉल्यूशन निकाल दिया। You have cut the Gordian knot. कई चीजें थी जब हमारा वो आफ्टर दिस इलेक्शंस व्हेन यू हैड योर न्यू प्राइम मिनिस्टर, ही टुक सम स्टेप्स जो कि बहुत डिफिकल्ट थे। ही कट द गॉर्डियन नॉट, है ना, उस तरह के साहस भरे कदम जिससे कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, उसको हम कहते हैं कटिंग द गॉर्डियन नॉट। 62 टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय बोल्ड एक्शन इसका मीनिंग है। To tread on somebody's toe. To tread on somebody's toe. हम जानबूझकर तो किसी के पैर पे पैर नहीं रखते, पर चलते फिरते ऐसा हो जाता है कि हम किसी के पैर पे पैर रख देते हैं और उससे सामने वाले को बहुत तकलीफ होती है ना। तो that is to tread on somebody's toe. किसी की कोई दुखती रग है, हमें उसका पता नहीं है, जाने अनजाने में हमने उसको छेड़ दिया। Now you have stepped on that person's toe. हमने जाने अनजाने में कुछ हमारे मुंह से निकल गया, हमने कुछ कह दिया और ऐसा करके हमने उसकी दुखती रग को छेड़ दिया जाने अनजाने। That is called treading on somebody's toe. ये intentionally नहीं होगा। क्या? Intentionally नहीं होगा ये चीज़, है ना? नहीं, इंटेंशनल नहीं है, अनइंटेंशनल है ये, अनइंटेंशनल है ये। A thorn in the flesh, किसी के रास्ते का कांटा। A constant source of annoyance. बार बार वो व्यक्ति क्या करता है, बार बार वो व्यक्ति आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम पोज करता है। वो व्यक्ति आपके लिए a thorn in the flesh बन गया है। A constant source of annoyance. Example है, his competitor is a thorn in the flesh for him. An old head on young shoulders. छोटी उम्र में बहुत समझदारी की बातें करना, छोटी उम्र में बहुत समझदारी की बातें करना। A child or a young person who thinks and talks like an older and experienced person. कई बार ऐसे मिलते हैं youngsters, young people जो बहुत गहराई वाली बातें करते हैं। अभी तो 20-25 साल की उम्र है, पर वो बातें वो कर रहे हैं जो कि नॉर्मली 45-50 साल की उम्र के लोगों को भी बातें जो समझ में नहीं आती। इससे इसका इंटेलिजेंस से कोई रिलेटेड नहीं है, ये एक तरह से विजडम वाली बात है, समझ जिसको हम कहते हैं ना, उस तरह की बात है। A child or a young person who thinks and talks like an older and experienced person. किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। At once beck and call. वही to be under somebody's thumb एक है, to be under somebody's thumb. To be at once beck and call, ये हमने कल भी क्लास में देखा था कि एक तो हमारे पर्सपेक्टिव से I am at the beck and call of XYZ, एक तो ये वाला है, and to be under someone's control। दूसरा और वो है ना एक और, हाँ, to lead someone by the nose, to lead someone by the nose, जो हमें डोमिनेट कर रहा है वो तो लीडिंग मी बाय द नोज है, और मैं जो हूँ आई एम एट द बेक एंड कॉल ऑफ दिस पर्सन। क्लियर हो गया ना, दो अलग पर्सपेक्टिव्स हैं ये। एन एसिड टेस्ट, सबसे कठिन टेस्ट, मतलब ये है कसौटी, तो ये पार करो तो तब है, तब मानेंगे। दिस इज एन एसिड टेस्ट। एट होम विथ समथिंग, एक कंपनी बहुत मेहनत से प्रोडक्ट बनाती है, सब कुछ करती है, ये करती है, वो करती है, लोग बहुत तारीफें करते हैं, फेसबुक पे 5000 लाइक्स आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। एसिड टेस्ट तो तब है जब ये प्रोडक्ट बाजार में जाए और लोग पैसे देके उसको खरीदें। दैट इज द एसिड टेस्ट। हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू बाय इट, है ना, दैट इज द एसिड टेस्ट।
गंभीर परीक्षण, a critical test. At home with something. To be very comfortable with something. To be very comfortable in a particular situation or in a particular group, that is to be at home with something. So, अब हम कल क्लास नहीं है, फ्राइडे सैटरडे तो मैं छुट्टी पे हूँ, मंडे को हम स्टार्ट करेंगे स्पोका का एस, स्पोका का एस हम करेंगे। Great. कल Zoom पे फर्स्ट ग्रेड को लेंगे, I will not take second grade at all. जो है फर्स्ट ग्रेड लोग